Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to you all. Today we will be looking forward towards our next lecture, that is examples of measures of dispersion. In the last lecture we looked forward upon the measures of central tendency and non-central tendency. Today we will be doing about examples about interquartile range, standard deviation, variation and coefficient of variation. So first of all, examples of measures of dispersion. As I told you before in my first lecture that there are 5 types of measures of dispersion, and why do we use measures of dispersion, it has already been told in my first and second lecture. You can look into it. Moving forward, we have 5 measures of dispersion: range, then we have interquartile range, we have standard of deviation, it is also known as mean deviation, fourth one is variance, and the last one is coefficient of variance. So we will be using a data set to calculate all of these, and to calculate some of these we will be requiring me to calculate them. So in this part I will tell you to calculate mean, to mod, interquartile range, so we will be using quartiles as well, and next we will move forward. So I have a data set over here. For example, a data set is 0, 0, 10, 20, 25, 40, 40, 60, 80 and 100. So this is my data set which has 10 values, so n is equals to 10 over here, and we will use to calculate, and we will use these values to calculate range, interquartile range, standard of deviation, variance and coefficient of variance. So first of all, as I told you in my last lecture, the formula to calculate range is largest value minus smallest value. So what is the largest value in this data set? 100 minus 0. So my range is 100 over here. As range is not a good form to calculate measures of dispersion, we move forward towards interquartile range. Interquartile range, it is a relatively easy concept, but you need to have quartiles, especially Q1 and Q3, to calculate interquartile range. So my formula, so range is 100 over here. For interquartile, formula is Q3 minus Q1. Q3 minus Q1. As you all know, you know how to calculate Q1 and Q3. हम यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, और आपको प्रीवियस वाले लेक्चर के अंदर क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करना बता दिया। सो Q1 का फॉर्मूला क्या था? n plus 1 divided by 4. Okay. So what is n? n is 10 over here. 10 plus 1 is 11. And 11 divided by 4 is 11. When you divide 11 by 4, the answer will be around 2.5. So what is 2.5, or how can I say, how can I calculate 2.5 over here? 2.5 value. So second and third value. अब second and third value को calculate करने के लिए what will I do?
क्या मैं करूँगा, आपको बताया भी था कि इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। n+1 डिवाइड बाय 4, 11+1 डिवाइड बाय 4 इज अराउंड 2.8 समथिंग, 2.9 समथिंग। एक मिनट, अगर ऐसा होगा ना तो 3-4 सेकंड का पॉज दे दिएगा। So Q1 is over here, the third value. So what is my Q3? Q3 would be here. This would be my Q3. Sorry, this will be my Q1. And to calculate Q3, what will I do? I will have n, which is 10, 10 plus 1, 11 divided by 4, and then multiplied by 3. So what will be my Q3? Q3 will be 60 over here. Okay. So 60 minus 10 is 50. So my interquartile range is 50 over here. Okay. So this is 50. Now it was very easy to calculate range and interquartile range, but both of them have disadvantages. So we cannot use both of them in some of the cases. Now I will move forward towards our third part, that is standard of deviation. So what is the formula to calculate the standard of deviation? Very easy, and I had told you in my presentation as well that the formula to calculate standard deviation is SD is equals to, which is also known as S under root summation of x minus x bar square upon n minus 1. And why are we using n minus 1? Because it is a sample and we only use n when we have a population data of population available. So n minus 1 और summation of x minus x bar square. x minus x bar के लिए मुझे यहाँ पे क्या पता होना चाहिए? The main important thing मुझे पता होना चाहिए, that is mean over here. So इस पूरे का mean में calculate कर लेता हूँ. What is mean? Mean would be adding all of them and dividing it by 10. So if I add all of them, what will be my answer? 10 plus 20 plus 25 plus 40 plus 40 again plus 60 plus 80 plus 100. So 240 is my total over here. I can calculate it again. 10 plus 20 plus 25 plus 40 plus 40 plus 60 plus 80 and plus 100. So my total is 375 over here. 375, and I will divide it by 10. So my mean is 37.5 over here. This is my mean. So अब मुझे आगे क्या करना होगा? x minus x bar स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा ताकि मैं आगे जो है बढ़ सकूं और अपनी वैल्यूज को जो है वो निकाल सकूं. x minus x bar बहुत इजी है कैलकुलेट करना. इसमें कोई डिफिकल्टी या कोई प्रॉब्लम आई गेस नहीं होगी. कैसे करेंगे इसको हम चेक करते हैं. So what is my mean? My mean is 37.5. इन सब के अंदर मुझे पता है कि मेरा x है, x minus x bar कैलकुलेट करूँगा. So
So 0 minus mean is 0 minus 37.5, which is minus 37.5. Again 10 minus 37.5 is 20 minus 27.5. 20 minus 37.5 is minus 17.5. 25 minus 27.5 is minus 12.5. Similarly over here 40 minus 37.5 is 2.5. Again 2.5. 60 minus 37.5 is 22.5. 80 minus 37.5 would be around 42.5, and 100 minus 37.5 would be around 62.5. And as you all know कि जब हम x minus x bar का सम करते हैं इस पूरे का सम आप करेंगे तो आई गेस ये 0 के बराबर आ जाएगा, इसलिए हम x minus x bar स्क्वायर यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x minus x bar का स्क्वायर करेंगे, यानी कि इन सब का स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने के बाद इन सब की जो भी वैल्यूज आएंगी उनको हम ऐड ऑन करेंगे। सो आई विल यूज कैलकुलेटर ओवर हियर। $37.5 square is 37.5 is around 140.146. Similarly 1.2.5. Then I have 27.5 multiplied by 27.5, it will be around 756.25. Now I will square 17.5, which should be around 306.25. Now squaring 12.5, $156.25. 2.5 into 2.5 is 6.25. This is also 6.25. 22.5 into 22.5, 506.25. Next is 42.5 into 42.5, which is 1806.25. And the last is 62.5 into 62.5, which is around 3906.25. So this is my x minus x bar. इन सब का मैं टोटल करता हूँ, तो टोटल के बाद जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू को और फिर इसको अंडर रूट करके आई विल कैलकुलेट माय वैल्यू। सो मैं इसको टोटल करता हूँ, सब का टोटल जो बनेगा मेरे पास दैट इज 1406.25 plus 1406.25. Next is 756.25 plus 306.25. Then we have 156.25. Then 6.25, 6.25, 506.25, 1806.25, and next is 3906.25. So it will be around 9021. 9021 would be my summation of x minus x square. 9021. So to use this formula, to use the formula S 9021 divided by n on n minus 1, क्योंकि हम यहाँ पे सैंपल ले रहे हैं तो n minus 1 से डिवाइड करेंगे, तो I divide it here by 9, n minus 1. So when you divide 9
20.901 by 9. The answer is 102.3, and when you square it, तो आपका जो आंसर आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो अराउंड 10.02 समथिंग. तो दिस वुड बी योर स्टैंडर्ड डेविएशन. और अगर आपको वेरिएंस कैलकुलेट करना है, वी विल सी हाउ टू कैलकुलेट वेरिएंस. वेरिएंस को कैलकुलेट करना इससे भी ज़्यादा आसान है क्योंकि आप स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू इसको कैलकुलेट करते हैं. इसको हम चेक करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला है. वेरिएंस के फॉर्मूले के अंदर हम क्या करते हैं, हम ये जो अंडर रूट है इसको वेरिएंस s स्क्वायर इक्वल्स टू n और n माइनस 1. हम x माइनस x बार की जो वैल्यू निकाली है होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय n माइनस 1 की है. इसको जैसे हम अंडर रूट रिमूव करते हैं इसको स्क्वायर कर देंगे तो हमारा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा. हम वेरिएंस को जो है वो s स्क्वायर की फॉर्म से भी रिप्रेजेंट करते हैं. जब हम इसको करेंगे हमारे पास आंसर जो आएगा वो अराउंड इट विल बी 102.5 समथिंग होगा. दिस इज योर वेरिएंस एंड दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन. अब हम आगे चेक करेंगे लास्ट पार्ट है हमारा वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है. उसको किस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स सी. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के अंदर जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं दैट इज CV is S upon H bar into 100%. ये 100 से बेसिकली हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका S क्या आ रहा है, आपका S आ रहा है 10.02 एंड व्हाट इज योर मीन. योर मीन इज 37.5. इन दोनों को डिवाइड करिए और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिए तो 10.02 multiply by 100 divided by 37.5, so it is around 26.72%. so this is your coefficient of variance. इसको हम CE के लिए उससे represent करते हैं. we can also tell it or we can also use it as CE. so this was a example of डेटा सेट. अब हम एक और एग्जांपल चेक करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको यहाँ पे सॉल्व करें. नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो एक ग्रुप फॉर्म में है. उसको हम चेक करेंगे कि किस तरीके से वी कैन कैलकुलेट इट और आगे किस तरीके से फर्दर हमें मूव करना है. सो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है this is our question. The frequency है 3, 12, 18, 12 and 3. अब इस ग्रुप क्वेश्चन में हमें फॉर एग्जांपल वी नीड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल मेक अ बॉक्स ओवर हियर.
3, 12, 18, 12 again, and 3. So D is the first difference. तो x minus 12 इसको कर रहे हैं, या आप इसको इसका बेसिकली मीन भी निकालेंगे तो तकरीबन इसी के बराबर आएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। x minus 12 ठीक है, सो -2 -1 0 1 and 2। Why I have taken 12 over here? इसको मैंने x minus 12 से शुरू करा है। I will tell in the next part। सबसे पहले हम FD कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं। ये हमारे पास बेसिकली एक भी मेथड है, उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे पास fx आएगा, fx लिया करेंगे डायरेक्ट, इसको मल्टीप्लाई करना 30, 132, 216, 156 and 42। fx स्क्वायर, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन में चाहिए होगा, इसमें हम करते क्या है, f स्क्वायर, x का स्क्वायर करते हैं मल्टीप्लाइड बाय f। तो 300, 1452, 2592, 20, 28 and 588। Total is 6960 and here total is 576। So हमारे पास मेजॉरिटी चीज़ अवेलेबल है, हम इसको कोशिश करेंगे इसके थ्रू सॉल्व करें। हमारा फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या है, s is equals to under root summation of fx square upon summation of f। This is for group data, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रुप डाटा लिया है। अनग्रुप के लिए आपको पता है इसका समेशन क्या आएगा हमारे पास, टोटल का 6960, फ्रीक्वेंसीज का टोटल इज 48 माइनस, अब हम देखिए यहाँ पे समेशन ऑफ fx का समेशन s का स्क्वायर लेते हैं 576 अपॉन समेशन 48 होल स्क्वायर। So when you will calculate the values, आपके वो चेक करेंगे कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जिसका आ रहा है वो भी अराउंड जो है 1 के बराबर आ रहा है। आपका जो आंसर आ रहा है वो 1 के करीब आ रहा है। सो दिस विल बी योर वैल्यू। हम इसको फॉर्म सॉल्व करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, इसी का वेरिएंस निकालेंगे तो इसका वेरिएंस भी आपके पास 1 ही आ रहा होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करें तो केवल 1 ही आएगा। So now अब हमें जो इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, s अपॉन x बार इनटू 100%। s आपके पास आ गया 1, x बार और उसका मीन कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वहां पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। कितना टाइम 20 मिनट होए 20 मिनट ऐसा नहीं है, मुझे अंदाजा ही नहीं। So now moving forward towards another example.
और जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, उसके अंदर भी हमको कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन है 30, 28, 25, 27, 20, 20, 24, 27, 19, 15 and 9। हम इसको कह देते हैं कि इसका ये एक फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन का डेटा है और we need to calculate the standard of deviation and we also need to calculate variance as well। तो दोनों के फॉर्मूले आपको पता है, we will try to solve it। सबसे पहले हमको पता है क्या निकालना है, x is 30, 28, 25, 27, 20, 20, 24, 19, 15 and 9। Then we have in the next part हमको क्या कैलकुलेट करना है, x का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। अब इन सब का स्क्वायर क्या क्या होगा, इसका तो आराम से 900 हो जाएगा। और फर्दर ऑन हमारे पास सिक्स 25, 729, this is 400, then we have 24 over here, this is 576, then 17, this is 17 over here, 17, 289, then for 19, 361, 15 is 225, and 9 is 81. The square 784, ये दो चीज़ें मुझे कैलकुलेट करनी थी। अब आई ट्राई टू सॉल्व इट। जो मेरे पास फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको सॉल्व करूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन सब का टोटल कर लेता हूँ। इनका टोटल क्या है मेरे पास, टोटल जो है 900 प्लस 784 प्लस 625, 729, 400, 576, 289, 361, 225 and 81. So it is 4970. 4970. And what is the formula? हम पता है formula क्या है मेरे पास, standard deviation का under root summation of fx square upon summation of f minus या मैं इसको इस तरीके से आगे भी कर सकता हूँ, summation of fx square upon summation of f। ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ ना, अनग्रुप वाला फॉर्मूला भी मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास अनग्रुप डेटा है, तो आई ट्राई कि मैं इसको किसी तरीके से सॉल्व करूँ। एंड वो तरीका क्या होगा मेरे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 4970 f नहीं होगा, 4970 अपॉन 10 माइनस, हम जब इसका समीकरण हम x का स्क्वायर करेंगे तो 240 अपॉन 10 इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। So we can see जब हमारे पास हम इसको आंसर वाइज कैलकुलेट करेंगे तो आंसर would be around 39
0.42 और जब उसको अंडर रूट कर देंगे तो इट विल बी अराउंड 6.24 inches into 2 So this is my standard deviation. अगर सिर्फ वेरिएंस निकालनी होगी, आपको पता है वेरिएंस का फॉर्मूला है इक्वल्स टू जो आपके पास है इसका स्क्वायर करते हैं, so your variance will be 39.42. So this was how to calculate standard of deviation and variation. इसके अंदर हमने सारी चीज़ें आज डिस्कस की हैं और रेडियस ऑफ डिस्पर्जन किस किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इस डेटा सेट का रेंज भी निकाल सकते हैं, आप इस डेटा सेट का इंटरकोटाइल रेंज भी निकाल सकते हैं और हम कोशिश करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो रिमेनिंग हमारे पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करें और सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।